Let's begin with fixed overhead variances. No matter what is given to you, always remember one thing. Whenever you calculate variances, the variances are an outcome of comparison. Satya Vachan. Variance is an outcome of comparison, and the comparison has to be at par. अब फिक्स्ड ओवरहेड्स है तो इसका क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं होगा. इट विल बी चार्ज्ड, इट विल बी रिकॉर्डेड, इट विल बी कैलकुलेटेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड. तो लाइफ में हमेशा याद रखना, बजटेड पीरियड और एक्चुअल पीरियड दोनों सेम होने चाहिए. तो अगर आपको एक्चुअल डेटा पर मंथ दिया है तो समहाउ गेट योर बजटेड डेटा कन्वर्टेड इनटू पर मंथ ओनली. हो सकता है कि ये पूरे साल के लिए दिया हो, डिवाइड बाय 12, गेट इट कन्वर्टेड इनटू पर मंथ. इफ दिस इज गिवन ऑन क्वार्टरली बेसिस, डिवाइड बाय, good, because if it is quarterly given, that means it is already for 3 months. So divide by 3. So in case of fixed overhead, period should be the same. और अब जब मैं फिक्स्ड ओवरहेड की बात कर रहा हूं, बीच बीच में मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड के बारे में सोचना छोड़ दो. इट इज 180 डिग्री डिफरेंट, कंप्लीटली ऑपोजिट. द सिंपल रीजन बीइंग, in case of material, in case of labor, in case of variable overheads, output level same होनी चाहिए. If your standard data is given for 1 unit, actual data is given for 10,000, your standard should be revised and should be taken to the level of 10,000. Your standard should be taken to the level of 10,000. If it doesn't happen, then you will get a wrong answer. So actual output level is important because you are dealing with variable cost. चाहे मटेरियल हो, चाहे लेबर हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे वेरिएबल ओवरहेड्स हो. इफ यू आर डीलिंग विथ वेरिएबल ओवरहेड्स और इफ यू आर डीलिंग विथ वेरिएबल कॉस्ट, क्वांटिटी इज द बेस, बट फिक्स कॉस्ट इज योर पीरियड कॉस्ट. तो सबसे पहले एक ही पीरियड के लिए दोनों डेटा होने चाहिए. और आपको ना पहले 8 आइटम्स यू नीड टू फाइंड आउट फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन, वेदर इट इज इंटर सीए, वेदर इट इज फाइनल सीए, वेदर इट इज एनी एग्जाम. Suppose I thought of spending 1 lakh, I managed to spend, I actually incurred 1,15,000. Okay. I thought of producing 10,000 units, I managed to produce 9,000 units. I should have completed my work, or rather I thought of completing my work in 20,000 hours, but I actually completed my work in 21,000 hours. There was an abnormal idle time of 2,000 hours. 25 डेज काम करने का सोचा था, 27 डेज काम हुआ है. ठीक है. आई हैव जस्ट टेकन हाइपोथेटिकल एग्जांपल. आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, आपका बजटेड डेटा मस्ट बी एट पार विथ एक्चुअल डेटा एंड द लेवल शुड बी द पीरियड. एक्चुअल पीरियड शुड बी द बेस. आगे बढ़े. So how much I thought of incurring? 1 lakh. How many units I thought of producing? 10,000. How many hours my team thought of working? 20,000. And I had planned to work for 25 days, but I managed to work for actually 27 days. 27 days. My team has actually worked for 21,000 hours. Out of that, 2,000 is idle time, abnormal idle time. 9,000 units I have produced, and 1,15,000 I have actually incurred. Now you all know that fixed overhead work on absorption basis. Yes. And on what grounds you absorb cost? Absorption rate. Okay. So what is the formula for absorption rate? Fixed overheads upon budgeted
absorption rate is budgeted fixed overheads upon budgeted output. मशीन आवर्स लेबर आवर्स लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक ही टाइप का फिनिश गुड्स बात कर रहे हो. तो हाउ मच वी आर प्लानिंग टू स्पेंड 1 lakh. हाउ मच वी वांट बैक 1 lakh. हाउ मेनी यूनिट्स डू यू हैव टू गेट इट बैक. So basically rupees 10 per unit is your absorption rate. Each unit should give you 10, 10, 10, 10 back. Correct? Okay. अब मुझे एक बात बताओ, एक यूनिट से कितना लेना है वापस? मैंने एक्चुअली कितने यूनिट्स बना के बेच दिए? 9,000 यूनिट्स. कितना आ रहा है? आपको समझा क्या हुआ है? गाइज, आई थॉट ऑफ रिकवरिंग बाय सेलिंग. So each unit should have given me, which is my predetermined rate. But I actually managed to produce only 9,000. So I must have collected only 90,000 from the customer. This is what my current scenario is. Yes or no? लिख दिया? लिख दिया? लिख दो, यहाँ तक लिख दो. उसके बाद simultaneously solve करेंगे. यहाँ तक लिख दो. Done? Okay. अब start करते हैं variance calculation. As usual, your first variance will be fixed overhead cost variance. एक लाइन छोड़ दो चाहिए तो फॉर्मूला के लिए, बाद में आके लिख देंगे. फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस. मुझे एक बात बताओ, हाउ मच यू हैव एक्चुअली इनकर्ड? 1,15,000 is what you have actually incurred. How much you should have absorbed? If you have incurred 1,15,000, you should have absorbed 1,15,000. But in reality, how much you recovered? 90,000. How much you couldn't? Can I say this is under absorption? It's a loss. If you can't recover 25,000, that means 25,000 will be paid out of your own pocket. That means it is a loss for you, adverse variance. समझ में आया? अब इसको एक्चुअल माइनस एब्जॉर्ब लिखना या एब्जॉर्ब माइनस एक्चुअल लिखना, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों केस में एडवर्स ही आएगा. तो फिर क्यों रटने का फॉर्मूला? भाई 1,15,000 जेब से गया, 1,15,000 के सामने 90,000 जेब में वापस आया, 25,000 आई हैव नॉट रिकवर्ड, एडवर्स वेरिएंस. इफ आई एम नॉट रिकवर्ड 25, दैट मीन्स इट विल बी पेड आउट ऑफ माई ओन पॉकेट. समझ में आया? अच्छा, अब हर एक वेरिएंस के रीजंस होते हैं. आपको 25,000 का अंडर एब्जॉर्प्शन मिला है, उधर लिख दो चाहिए तो, अंडर एब्जॉर्प्शन हेंस एडवर्स. अंडर एब्जॉर्प्शन हेंस एडवर्स. तो क्या है, प्लस होगा तो फेवरेबल, लेस होगा तो माइनस में होगा तो एडवर्स. ऐसा भी होता है बहुत जगह पे, तो वो सब नहीं चाहिए अपने को. ये चीज़ें बदलती रहती है, प्लस माइनस बदलेगा अगर फॉर्मूला में जगह बदल गई. क्यों चाहिए तुम लोग ऐसा? व्हाट इफ यू टेक एब्जॉर्ब माइनस एक्चुअल, प्लस का माइनस होगा और एडवर्स का फेवरेबल और जान का में. क्यों चाहिए हमको ये सब? आप समझ रहे हो? एक्स्ट्रा नॉलेज क्यों चाहिए फालतू, और वो भी फालतू का, रिडेंडेंट लॉजिक है. 1,15,000 जेब से गया, 90,000 वापस आया, 25,000 अंडर एब्जॉर्प्शन एडवर्स, खत्म हो गया बात. अब अंडर एब्जॉर्प्शन का रीजन होता है एब्जॉर्प्शन रेट. अरे ये एब्जॉर्प्शन रेट अगर 10 के बदले 15 होता तो आज ज्यादा पैसा रिकवर कर लिया होता मैंने. पर एब्जॉर्प्शन रेट का रीजन होता है ये दो. मतलब मैंने बजटेड ओवरहेड स्ट्रक्चर भी फॉलो नहीं किया, ना मैंने बजटेड क्वांटिटी स्ट्रक्चर फॉलो किया. इसका मतलब मेरे कॉस्ट वेरिएंस में दो रीजंस आएंगे. एक आएगा मेरा बजट जो गलत गया है, दूसरा आएगा मेरा वॉल्यूम क्वांटिटी जो अलग आया है. नाउ योर फिक्स्ड ओवरहेड बजट वेरिएंस इज ऑल्सो नोन एज एक्सपेंडिचर वेरिएंस, विच इज द फर्स्ट रीजन. आपने कितना सोचा था? 1 lakh. 1 लाख.
आपने सोचा पे करेंगे 1 लाख, बट आपने एक्चुअल कितना पे किया? सो गेटिंग 15,000 पेड ओवर एंड अबाउ योर एक्सपेक्टेशन इज अच्छी बात, गंदी बात? गंदी बात। एडवर्स वेरिएंस उधर लिख देना, स्पेंट मोर देन एक्सपेक्टेड, हेंस एडवर्स। स्पेंट मोर देन एक्सपेक्टेड, हेंस एडवर्स। Spend more than एक्सपेक्टेड, एकदम शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ, स्पेंट मोर देन एक्सपेक्टेड, हेंस एडवर्स। यार कम पे किया होता तो फेवरेबल। हाँ, अभी ध्यान से देखना, ये आपका आता है 15,000 एडवर्स। जस्ट सोचो, you're out of 25,000 adverse, which is your cost variance. If budget variance is 15,000 adverse, naturally the volume variance has to be 10,000 adverse. yes. Volume means quantity. Okay. So fixed overhead volume variance. Tell me how much was your expected quantity? 10,000. Well, you managed to sell only 9,000. how many units you couldn't sell? 1,000. 1,000 यूनिट्स अगर बेच देते तो 10 पर यूनिट के हिसाब से 10,000 कमा लेते। Yes. 1,000 यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाए हाँ. तो 10,000 रिकवर नहीं कर पाए, तो दैट इज ऑल्सो रीजन फॉर कॉस्ट वेरिएशन। करेक्ट? इसका रीजन लिख दो, लेसर क्वांटिटी देन एक्सपेक्टेड, लेसर क्वांटिटी देन एक्सपेक्टेड, comma, lesser is the recovery of overheads. Lesser is the recovery of overheads. Lesser is the recovery of overheads. समझा आपको? मैं रीजन भी लिखवा रहा हूँ। अच्छा, अगर बजट से ज़्यादा खर्च करते हो तो एडवर्स है, बजट से कम खर्चा किया होता तो पैसा बच गया, फेवरेबल है। इट इज़ दैट सिंपल। प्लस आया तो ऐसा, माइनस आया तो ऐसा, करना ही मत। इट विल लीड टू कंफ्यूजन, क्योंकि प्लस माइनस तभी सही आएगा जब फॉर्मूला होगा, और फॉर्मूला अगर उल्टा कर दिया तो प्लस माइनस और एडवर्स फेवरेबल सब उल्टा हो जाएगा। ये सब लाना ही नहीं है। यू आर स्पेंडिंग मोर देन व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड, व्हाट यू वर एक्सपेक्टिंग। Adverse. यू आर सेविंग, Favorable. यू आर सेलिंग मोर क्वांटिटी, Favorable. यू आर सेलिंग लेस, Adverse. यू एब्जॉर्ब मोर, फेवरेबल, यू एब्जॉर्ब लेस, एडवर्स। खत्म हो गया। हाँ. समझा? Yes, sir. अब आपको तो पता है हम लोग हमेशा रूट लेवल रीजन ढूंढते हैं। नहीं, रूट लेवल रीजन इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। हाँ. 7 बजे का लेक्चर है, बच्चा 7:40 को आया, क्यों भाई लेट क्यों हुआ? सर आई मिस द बस। व्हाई डिड यू मिस द बस? सर आई रीच लेट एट द बस स्टॉप। व्हाई डिड यू रीच लेट एट द बस स्टॉप? सर आई वोक अप लेट। व्हाई डिड यू वेक अप लेट? सर आई स्लेप लेट। व्हाई डिड यू स्लीप लेट? सर वो कॉस्टिंग का सम कर रहा था। आजा बेटा बैठ, फर्स्ट बेंच पे बैठ। बाकी सब कुछ सेम। वापस 7:40 को आया एक जन, दूसरा वाई आर यू लेट? सर आई मिस द बस। वाई डिड यू मिस द बस? सर आई रीच लेट एट द बस स्टॉप। वाई डिड यू रीच लेट एट द बस स्टॉप? सर आई वोक अप लेट। वाई डिड यू वेक अप लेट? सर आई स्लेप लेट। वाई डिड यू स्लीप लेट? वो सर वो धुरंधर 2 देखने गया था। निकल बाहर। एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट द रूट कॉज। हाँ. मुझे अगर एडवर्स फेवरेबल वेरिएशन मिल रहा है, इसका मतलब देयर इज समथिंग वियर्ड, something unexpected has happened in the organization. I should know the reason for it, whether it is adverse, whether it is favorable. Yes. बॉस, मेरा प्रोफेसर 45 आवर्स का काम 50 आवर्स में करता है तो मैं उसका कान पकड़ूंगा, बट 45 का आवर्स वो 40 आवर्स में करता है तो भी पूछूंगा डर डर के कि भाई तूने किया है कि नहीं सब कुछ बराबर से, या ये क्लास वर्क ये नहीं आएगा एग्जाम में, वो नहीं आएगा एग्जाम में, ये इसका सोल्यूशन फोटो ले लो, ये करो वो करो करके टाइम पास करके निकाल दिया है। Because I don't want to sacrifice the quality. So whether it is adverse variance, whether it is favorable variance, I will verify that. अब बजट वेरिएंस का भी फर्दर इवैल्यूएशन करूंगा, वॉल्यूम वेरिएंस का भी फर्दर इवैल्यूएशन करूंगा, लेकिन बजट वेरिएंस का फर्दर इवैल्यूएशन हो ही नहीं सकता। नहीं समझे? बजट वेरिएंस का फर्दर इवैल्यूएशन हो ही नहीं सकता। भाई क्या है, सोचा था नहीं हुआ, ठीक है यार, मतलब मार्केट फोर्सेस डिसाइड करता है प्राइस, मेरी क्या गलती इसमें? मैंने सोचा था ₹1,00,000 में प्रोडक्ट बनना चाहिए, ₹1,00,000 खर्चा आएगा फिक्स कॉस्ट का, मेरा फिक्स कॉस्ट 1,15,000 हुआ तो ठीक है यार, वो तो मार्केट फोर्सेस की वजह से, उसको क्या ही इवैल्यूएट करोगे आगे। अब बीवी एडवर्स है तो है, अब कुछ नहीं कर सकते, उसका कोई रीज़न नहीं है, नसीब का बात है।
फेवरेबल भी हो सकती थी वेरिएंस की अमाउंट। क्या क्या सोच रहे हो? अरे 1 लाख सोच के 1,15,000 खर्च किया, लेकिन 1 लाख सोच के 95 भी हो सकता था। तो वो सब नसीब की बात है, एडवर्स है या फेवरेबल है। बट वॉल्यूम तो आपकी इन हाउस एक्टिविटी है, वॉल्यूम तो आपने खुद प्रोड्यूस किया है। तो वॉल्यूम ज़्यादा प्रोड्यूस करते हो कम प्रोड्यूस करते हो तो रीज़न आपको पता होना चाहिए। एंड दैट इज़ वाई बजट वेरिएंस का कोई भी फर्दर इवैल्यूएशन नहीं है, लेकिन वॉल्यूम वेरिएंस में होगा। वॉल्यूम वेरिएंस में डेफिनेटली होगा। क्यों पता है? क्योंकि दैट इज़ योर इन हाउस एक्टिविटी। तो अब मुझे ये जानना है कि ये 10,000 बनाने का सोचा था तो सिर्फ 9,000 क्यों बना? 10,000 बनाने का सोचा था तो 9,000 क्यों बना? मेरा सबसे पहला रीज़न क्लियर कट दिख रहा है। मेरे आवर्स में डिस्क्रिपेंसी है, मेरे डेज में डिस्क्रिपेंसी है। तो एक एक करके सेटल करते हैं। तो मेरा फर्स्ट वेरिएंस आएगा फिक्स्ड ओवरहेड्स कैलेंडर वेरिएंस। मेरा फर्स्ट वेरिएंस आएगा फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस। कैलेंडर देखा है? नॉर्मल कैलेंडर क्या दिखता है उसमें? डेज एंड डेट्स। हॉरोस्कोप वगैरह नहीं गिनने का इधर, अभी मेनली कैलेंडर में डेज एंड डेट्स होता है। अब डेट्स बाजू में रखो, दिस इज नॉट अ राइट टाइम टू गो फॉर डेट। डेज की बात करते हैं। और जब मैं पूछ रहा हूं उसको सोच समझ के, पहले तो सुनो फिर सोचो फिर जवाब देना। I had thought of utilizing 25 days in the premises. I had thought of utilizing 25 days in the premises. I utilized 27 days in the premises. Adverse or favorable? It's favorable. मेरी बात ध्यान से सुनो। Did I say 25 days का काम 27 days में किया है? I said I thought of utilizing 25 days in the premises. I utilized 27 days in the premises. It is excess utilization without incurring any fixed cost. चलो तुमको अपना एग्जांपल दे देता हूँ। क्लासरूम का रेंट मंथली पे कर रहा हूँ, क्लासरूम का रेंट मंथली पे कर रहा हूँ। सपोज 2 लाख रुपीज पर मंथ इज द रेंट। हाउ मेनी डेज आई कैन यूज दिस? डिपेंड्स, 30, 31, 28 डिपेंड्स। अभी क्या चल रहा है? अप्रैल, तो 30 बराबर। तो आइडियली आई कैन यूज दिस प्रीमाइसेस फॉर 30 डेज। बट मैंने सोचा क्या 30 डेज बच्चों को बुला के रोज बोर करने का, 5 दिन का छुट्टी देते हैं, एवरी संडे ऑफ। तो मैंने प्लान किया 25 डेज बुलाऊंगा। फिर अब मुझे लगता है कि नहीं यार, 2 दिन एक्स्ट्रा बुला दो तो इसी महीने में सिलेबस इनका खत्म हो जाएगा। इफ आई कॉल यू फॉर 2 more days इन द नेक्स्ट मंथ, तो पूरे साल का, पूरे महीने का रेंट देना पड़ेगा। तो फिर मैंने क्या सोचा, इनको इसी महीने बुला लेते हैं। तो 25 डेज के बदले आई कॉल्ड यू फॉर 27 डेज। तो लैंडलॉर्ड आके एक्स्ट्रा रेंट मांगेगा? नहीं ना। सो विदाउट इनकरिंग एनी एडिशनल फिक्स कॉस्ट आई एम यूटिलाइजिंग रिसोर्सेस। हाँ या ना? सो डोंट यू थिंक इट इज अ फेवरेबल वेरिएंस? कैलेंडर वेरिएंस हैज गॉट नथिंग टू डू विथ योर एफिशिएंसी। एक अमाउंट देके 25 दिन काम करना था, एक अमाउंट देके 27 डेज काम करते हो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। It is excess utilization without incurring any additional fixed cost, so it has to be favorable. एक छोटा सा प्रॉब्लम है इधर, मुझे रेट जो अप्लाई करना है वो पर डे करना पड़ेगा। ओके, तो टेल मी हाउ मच वाज योर बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड? हाउ मच वाज योर बजटेड डेज? तो 1 day in that premises cost me 4,000. क्या लिखूं? 8,000 तो लिख दिया। एडवर्स है फेवरेबल। आपको रीजन समझ में आया? तो ये 8,000 क्या है? इट इज एक्सेस यूटिलाइजेशन क्वांटिफाइड इन टर्म्स ऑफ मनी। पहले तो लिखना बंद करो, इधर ध्यान दो। आपको ये समझा पहले 25 का 27 हुआ तो एडवर्स के बदले फेवरेबल क्यों? अब अगर आप प्लस माइनस फॉलो करते हो तो इधर नेगेटिव आने के बाद भी फेवरेबल है, तो फिर आपको फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। 27 माइनस 20 क्यों करने का ये सब? लेकिन कॉमन सेंस है। एक अमाउंट पे कर रहा हूँ मंथली, 25 डेज काम करने का सोचा है, 27 डेज काम कर दिया, खत्म हो गई बात। नाउ इफ आई वांट टू क्वांटिफाई दैट इन टर्म्स ऑफ रुपीज, आई हैव टू अप्लाई पर डे रेट। चलो धुरंधर देखने गए,
300 रुपये टिकट है, 400 रुपये टिकट है, 4 घंटे का मूवी। आप लोग मूवी देखने आए हो, मेरे पास 2 लेक्चर के बीच में 3 घंटे का गैप है। मैंने सोचा अभी क्या इधर उधर टाइम पास करने का, तो प्रोडक्टिव यूज़ करते हैं टाइम का, तो मैं भी आ गया धुरंधर 2 देखने। बट मैं तो 3 घंटा देख के निकल जाऊंगा। तुम लोग 4 घंटे के लिए गए हो, 400 रुपये टिकट कटाया। फॉर यू एब्जॉर्प्शन रेट इज 100 पर आवर। फॉर यू एब्जॉर्प्शन रेट इज 100 पर आवर। मेरा प्लान ही 3 घंटे का है, तो मैं गया टिकट विंडो, उसको बोला भाई 3 घंटे का धुरंधर दे। नहीं होगा ना, मतलब आई हैव टू पे, दैट मीन्स फिक्स कॉस्ट इज इनकर्ड फॉर अ स्पेसिफिक कैपेसिटी। तो मैं 3 घंटा बैठू, 2 घंटा बैठू, 1 घंटा बैठू, मुझे तो 400 रुपये देना है। आपने भी 400 दिया, मैंने भी 400 दिया, आपने 4 घंटे के लिए 400 दिया, मैंने 3 घंटे के लिए 400 दिया। आपका एब्जॉर्प्शन रेट अलग, मेरा अलग। पर 3 घंटा होने के बाद मूवी पसंद आई मुझे, तो मैंने सोचा पूरा देख लेता हूँ। डू यू थिंक दिस पीपल विल कम टू मी एंड आस्क फॉर एक्स्ट्रा मनी? नो। मैंने अपने प्लान से ज्यादा यूटिलाइज किया, मैंने अपने प्लान से ज्यादा यूटिलाइज किया। मैंने सोचा था 3 घंटा बैठूंगा, मैंने 4 घंटा देख ली। फॉर मी इट इज एक्सेस यूटिलाइजेशन विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी। आपको समझ में आ रही है बात? तो फिर 4000 से क्यों मल्टीपल किया? अबे 2 डेज फेवरेबल थोड़ी लिखूंगा मैं। आई नीड दैट वेरियंस टू बी कन्वर्टेड इनटू, accumulated into rupees, converted into rupees, monetary value चाहिए उसकी। तो 4000 मल्टीप्लाई, 1 डे दैट प्रीमाइसेस कॉस्ट मी 4000। भाई 1 लाख रुपए का रेंट पे कर रहा हूं मैं 25 दिन के लिए, तो 1 डे कॉस्ट मी 4000। 2 डेज एक्सेस यूटिलाइजेशन इज वर्थ ₹8,000। बात समझ में आई? जैसे मुझे यहां से जाना है गोरेगांव, तो मैंने मिथिला को बोला मुझे ओला बुक करके दे, मेरा ऐप नहीं चल रहा है, पर कैश ऑप्शन रख, पैसे मैं दूंगा। कैब बुक कर ली, मैंने पूछा उनको कितना बता रहा है, बोला 200 रुपये। ओके ठीक है। मैं गोरेगांव पहुंचा, डेस्टिनेशन से 100 मीटर पहले उतरा, उसको बोला अंकल वो बिस्किट लेके आता हूँ थोड़ा। आज तक वापस नहीं गया। मेरा फायदा कितना? 200 फेवरेबल, बिकॉज दैट सर्विस वॉज वर्थ 200। ट्रेन से विदाउट टिकट गया होता तो 10 फेवरेबल, क्योंकि टिकट का रेट 10 रुपये है। फर्स्ट क्लास में गया होता तो 50 फेवरेबल। तो बेसिकली 1 डे इन दैट प्रीमाइसेस इज कॉस्टिंग मी 4000। 2 एक्सेस डेज विदाउट पेइंग फॉर इट इज अ बेनिफिट वर्थ ₹8,000। मैं सिर्फ क्वांटिफाई कर रहा हूं उसको। बात समझ में आई? ये लिख लिया सबने? ओके। अब डेज का तो काम हो गया, सुनो, मगर कैपेसिटी भी तो चेक करनी पड़ेगी आपको। मैं समझाता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। कुछ भी अच्छा लिख रहे हो तुम लोग? मत लिखो, थोड़ा समझ लो इसको। मैं नॉर्मली इस क्लासरूम में 6 घंटा लेक्चर कंडक्ट करता हूं। मेरा प्लान था 25 डेज 6 आवर्स। फिर मुझे लगा कि नहीं यार 2 दिन एक्स्ट्रा बुला दूं इसी महीने में, तो अगले महीने की फिक्स कॉस्ट बच जाएगी। मैंने बुला दिया 27 डेज, पर 6 घंटे के बदले 3 घंटा ही बुला दिया। तो आइडियली आई शुड हैव कॉल्ड यू फॉर 12 आवर्स मोर, बट आई कॉल्ड यू ओनली फॉर 6 आवर्स मोर। तो डेज वाइज इट इज एक्सेस यूटिलाइजेशन, बट आई वेस्टेड कैपेसिटी। तो कैपेसिटी का इवैल्यूएशन भी जरूरी है। ध्यान से सुनना, 25 डेज में कितना आवर्स काम करने का सोचा था? अपना डेटा देखो। हाँ, तुम लोग की इच्छा नहीं पूछी मैंने, डेटा देख के बताना। 25 डेज में कितने आवर्स काम होना चाहिए? सो इफ यू हैव एक्चुअली वर्कड फॉर 27 डेज, बच्चा लोग, टिंग 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 टिंग, कितने दिन काम होना चाहिए था? 2160। एक और ले लो 0। 21,600। मतलब देखो मेरी बात को अच्छे से सुनना। अभी
25 डेज में 20,000 घंटा काम होता है, तो 27 डेज अगर मैं प्रीमाइसेस खोल के रखता हूँ तो 21,600 डेज काम 21,600 आवर्स काम होना ही चाहिए था। अपना काम हुआ कितना है? 22,000 21,000 सॉरी 21,000। अब यार आइडल टाइम माइनस नहीं किया, क्यों करने का? आर यू प्रोड्यूसिंग एनीथिंग? आर यू फाइंडिंग आउट? आर यू इवैल्यूएटिंग एफिशिएंसी? नो। ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना। मैंने 25 दिन के बदले 26 और 27 दोनों दिन तुम लोग को बुलाया। 26वें दिन मैंने सिलेबस खत्म किया और 27th डे को हम लोग ने इधर पार्टी की यूट्यूब पे गाने लगा के। फिर मैंने पेरेंट्स मीटिंग भी कंडक्ट की और शाम को मैं और प्रज्ञेश सर दोनों बैठ के आईपीएल देख रहे थे इधर। स्टिल इट इज कंसिडर्ड एज यूटिलाइजेशन। Don't mix up your capacity variance and calendar variance with efficiency. No, I'm simply finding out to what extent capacity was utilized. क्योंकि मेरे quantity में variation आया मतलब capacity में कुछ तो गफला हुआ है। तो मुझे ये पता चलता है कि 2 दिन एक्स्ट्रा काम किया है लेकिन फिर भी 600 घंटा कम यूटिलाइज हुआ है। सो डे वाइज फेवरेबल, पर 21,600 के बदले सिर्फ 21,000 ही काम हुआ है। इसका मतलब 600 घंटे वेस्ट किए, पर आर्ली रेट निकालना पड़ेगा। अरे ये आर्स है ना, तो इसको पर डे से मल्टीप्लाई करूं, पर यूनिट से मल्टीप्लाई करूं या पर आवर से? तो पर आवर 1 lakh is your budgeted cost, 20,000 is your budgeted hours, 5 rupees per hour is the answer. कितना आ रहा है? 3,000 एडवर्स। समझ में आई बात? आपने कैलेंडर वेरिएंस लिखा, कैलेंडर वेरिएंस लिखा, उसके नीचे नोट लिखो एक्सेस डेज यूटिलाइज्ड, एक्सेस डेज यूटिलाइज्ड, excess days utilized without incurring any additional fixed cost. Excess days utilized without incurring any additional fixed cost. Hence favorable. Hence favorable. Hence favorable. लिखा? कैपेसिटी वेरिएंस कॉपी कर लो। राइट ऑन द नेक्स्ट लाइन। 600 hours wasted, 600 hours wasted, under utilization। क्या लिखा? 600 hours are wasted, that is under utilization, hence adverse। Right on the next line, calendar and capacity variances, calendar and capacity variances, calendar and capacity variances focus on utilization, focus on utilization, and not efficiency, focus on utilization and not efficiency, and therefore if actual is more, if actual data is more, if actual data is more, it is excess utilization, without incurring any additional fixed cost, without incurring any additional fixed cost.
without incurring any additional fixed cost, hence favorable. अच्छा, आपको ये रियलाइज हुआ कि आइडल टाइम हमने क्यों कंसीडर नहीं किया? फर्क ही क्या पड़ता है? देखो मैं एक बार प्रीमाइसेस अनलॉक करूं, इट इज यूटिलाइजेशन. क्वांटिटी बनाया नहीं बनाया वो सब एफिशिएंसी में बात करेंगे, नॉट एट द टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन. मैं पिक्चर भी देखूं इधर बैठ के तो भी इट इज यूटिलाइजेशन. तो पिक्चर देख रहा है तो क्वांटिटी कैसे बनाएगा? तो लेट दैट बी शोन इन एफिशिएंसी, नॉट हियर. समझा? ओके. सो दैट इज वाई देखो मस्त आ गया ये. एक्सेस यूटिलाइजेशन विदाउट इनकरिंग कॉस्ट फेवरेबल, लेकिन इधर अंडर यूटिलाइजेशन where your fixed cost is unchanged, पैसा ऑलरेडी भरा है, काम कम यूटिलाइज कर रहे हो, तो इट इज एन एडवर्स वेरिएंस. तो हम लोग क्या ढूंढ रहे थे इधर? वॉल्यूम वेरिएंस का रीजन. कैलेंडर कितना? कैलेंडर कितना? 8000 फेवरेबल. कैपेसिटी कितना? यार तो ये तो नेट इफेक्ट इज 5000. अब 10,000 एडवर्स में से 5,000 एडवर्स ये दोनों हैं, तो फिर दैट मीन्स 5,000 एडवर्स मस्ट बी इनएफिशिएंसी. यार ज्यादा दिन है. नेट इफेक्ट इज व्हाट? 5,000 फेवरेबल. नेट इफेक्ट इज 5,000 फेवरेबल. अच्छा, डिस्पाइट ऑफ दिस बीइंग फेवरेबल, it is 10,000 adverse. That means it is 15,000 favorable. 15,000 adverse. मतलब आप जितना सोच रहे हो उससे ज़्यादा इनएफिशिएंट निकले. यार एक्स्ट्रा दिन भी काम किया है, एक्स्ट्रा आवर्स भी है, तो भी आप कम प्रोड्यूस कर रहे हो. लेकिन एक बात याद रखना लाइफ में, वेन एवर यू पॉइंट आउट योर वर्कर्स देयर मिस्टेक, दे विल ऑलवेज पॉइंट आउट towards idle time because it is not their fault. लाइफ में हमेशा याद रखना ये चीज. इफ यू टॉक अबाउट वर्कर्स एफिशिएंसी, वर्कर विल टॉक अबाउट आइडल टाइम. मैं जैसे ही वर्कर को बोलूंगा तेरा 15,000 की वजह से, तुम लोग की वजह से मेरा 15,000 का नुकसान हुआ, बोलेगा क्या साहब 15,000 क्या? लाइट नहीं थी, पावर नहीं थी, 2,000 घंटा तो काम नहीं हुआ. हम हाउ कैन यू होल्ड अस रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? ओके, मतलब अब मुझे अगर वर्कर की असली रिस्पॉन्सिबिलिटी निकालनी है, अब मुझे वर्कर की अगर असली रिस्पॉन्सिबिलिटी निकालनी है, तो मुझे क्या कर लेना चाहिए? आइडल टाइम को और उसके इम्पैक्ट को, दोनों को हटाना पड़ेगा. चल तो फिर मेरा नेक्स्ट वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड्स आइडल टाइम वेरिएंस कितना है? आइडल टाइम कितना है? 2000 hours. Absorption rate per hour is 5. यार 10,000, लेकिन एडवर्स लिखूं या फेवरेबल? ऐसा डाउट ही कैसे आता है मन में? इट इज अनप्रोडक्टिव टाइम. अभी समझा? 10,000 एडवर्स. तो गाइज 15,000 में से 10,000 के लिए वर्कर जिम्मेदार नहीं है, तो 5,000 का तो जवाब उसको देना पड़ेगा ना. माना कि मैं आई कैनॉट होल्ड यू रिस्पॉन्सिबल फॉर 15,000, बट आई कैन डेफिनेटली आस्क यू क्वेश्चंस अबाउट 5,000 एडवर्स नाउ, बिकॉज 10,000 वाज ड्यू टू आइडल टाइम. आई रिमूव द इम्पैक्ट ऑफ इट. नाउ यू विल हैव टू आंसर मी फॉर 5,000. लिख दिया, आइडल टाइम लिख दिया, फिक्स्ड ओवरहेड हो जाएगा बेटा आज. हाँ, ये समझा? चलो, अभी जो नेक्स्ट कैलकुलेशन है, which is that is very important, and that is your fixed overhead efficiency variance. क्या नाम? लाइफ में हमेशा याद रखना, यूटिलाइजेशन के लिए आइडल टाइम को सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, बट
एफिशिएंसी के लिए आपको आइडल टाइम को हटाना ही होगा, बिकॉज योर वर्कर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट आइडल टाइम. आर यू गेटिंग मी? नाउ efficiency of workers can be determined in two different ways, either on the basis of productivity or on the basis of time. ध्यान से सुनना. If I produce more during the same time, it's favorable. I am efficient. If I take more time to produce the same, it's adverse because I am inefficient. तो यार आवर्स के हिसाब से भी आ सकता है, यूनिट्स के हिसाब से भी आ सकता है एफिशिएंसी. चलिए हम दोनों निकाल लेते हैं. पहले आवर्स की बात करते हैं. टेल मी हाउ मच वाज योर बजटेड क्वांटिटी? 10,000 यूनिट्स. हाउ मेनी आवर्स यू थॉट ऑफ यूटिलाइजिंग? 20,000. चलो आपने एक्चुअली कितना लिया बनाया? तो टिंग 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 टिंग. योर टीम शुड हैव टेकन 18,000 आवर्स. योर टीम शुड हैव टेकन 18,000 आवर्स टू कंप्लीट द प्रोडक्शन. हाँ या ना? बट योर टीम हैज टेकन एक्चुअल आवर्स देखो. नहीं, इन्हीं हाथों से आइडल टाइम को अलग कर चुके हैं हम लोग. तेरे हाथ ही नहीं है. अच्छा देख ना कैसे बैठी है. अरे समझ रहे हो क्या? 18,000 hours should have been taken, but 19,000 hours are taken. 1000 घंटे ज्यादा. आर्ली रेट क्या है? तो 5,000. ज्यादा टाइम लेना अच्छी बात गंदी बात? गंदी गंदी. एडवर्स वेरिएंस कहिए, वही तो नहीं. चेक कर लो. 5,000 एडवर्स. लिख लो एफिशिएंसी वेरिएंस. एक्चुअल आवर्स वर्कड. अभी देखो इसका फॉर्मूला क्या जनरेट होगा? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट बराबर माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड मल्टीप्लाइड बाय एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट. समझा? अब कौन याद रखेगा ये सब? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आवर्स फॉर स्टैंडर्ड. कंफ्यूजन हो सकता है. एक बार कैलकुलेशन सीख लो, फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी. अच्छा नहीं याद आया नाम, तो स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू एब्जॉर्प्शन रेट के आ जाना है. तुमको वैसे भी फर्क नहीं पड़ता. फॉर्मूलाज तो वैसे भी अलग अलग ही होते लोगों के. आंसर सेम रहेगा. यू आर सेफ. नॉर्मल आइडल टाइम होता तो स्टार्टिंग में निकाल देते. इफ देर इज नॉर्मल आइडल टाइम, दैट मीन्स यू ऑलरेडी नो योर वर्कर्स आर नॉट गोइंग टू वर्क फॉर दैट. तो फिर मैं 20,000 आवर्स में लूंगा ही नहीं ना, मैं पहले से निकाल दूंगा उसको. हाँ, तो इसको 19 ले लेते हैं. कितना एक्सपेक्टेड है उस पर डिपेंड करता है. हाउ मच आर यू एक्सपेक्टिंग नॉर्मल आइडल टाइम टू बी? तो हमारे रेट्स भी चेंज हो जाते हैं. सब कुछ चेंज हो जाता है. अंडरस्टैंड? इफ देर इज नॉर्मल आइडल टाइम, remove it before you start with the solution. It will not be even part of standard and budget. दोनों का आइडल टाइम वेरिएंस आता ही नहीं. आइडल टाइम वेरिएंस इसके वजह से आता है. मेरी बात ध्यान से सुन. तूने 1000 का आइडल टाइम एक्सपेक्ट किया था, तो इसमें से निकाल देगी. यू विल टेक दिस एज 19. फिर भी पॉसिबल है तेरी टीम 21,000 आवर्स लेके 2,000 घंटे का आइडल टाइम एक्स्ट्रा ले. दैट इज डिफरेंट. नॉर्मल होगा तो चेंज ओवर की वजह से होगा, लंच की वजह से होगा. दैट इज एक्चुअल. एबनॉर्मल दैट इज एक्चुअल. नॉर्मल मतलब एक्सपेक्टेड. एक्सपेक्टेड है तो लेना ही मत. गॉट इट? आई एम एलर्जिक टू फॉर्मूलास. मेरे को जमता ही नहीं है. Because I have seen people, students struggling with formulas. It leads to confusion unnecessarily. क्योंकि एक word standard hours for actual output
और एग्जाम में ब्लैंक हो गए तो फिर वो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल आवर्स, कंफ्यूजन। भाई साहब 10,000 के लिए 20,000 घंटे लगते हैं, 9,000 के लिए कितना, 19,000 आवर्स में होने वाला काम, 18,000 आवर्स में होने वाला काम 19,000 आवर्स में हुआ, 1000 घंटे ज्यादा लिए, एडवर्स तेल बेचने गया फॉर्मूला। कैसे कुछ तो लिखे, तो स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू एब्जॉर्प्शन रेट लिख दो, क्या कर लेगा एग्जामिनर, फॉर्मूला तो लिखा ही है। सो यू आर सेफ। ये हार्ड डिस्क खाली रहेगी, थोड़ी खाली ही है, नहीं मतलब फॉर्मूला से नहीं भरेगी, ऐसा बोल रहा हूँ। ज्यादा बोल दिया। अच्छा, बेस्ड ऑन आवर्स क्लियरली समझा। अच्छा, अभी सेम एफिशिएंसी इवैल्यूएशन बट दिस टाइम इट विल बी बेस्ड ऑन आउटपुट। सुनो, 20,000 घंटे जो काम करने का सोचा था आपने, यू थॉट ऑफ प्रोड्यूसिंग 10,000 यूनिट्स, लेकिन आपके टीम ने एक्चुअली काम कितना किया है, 19,000। निंग 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 निंग। कितने यूनिट्स बन जाने चाहिए थे? 10,500। हाँ, 9,500। बराबर। मतलब बॉस 9,500 यूनिट्स बनाया जा सकता था, आप बना के बैठे हो 9,000, कितने यूनिट्स नहीं बना पाए? 500। अगर बनाते तो सुनो, अगर बनाते तो 500 यूनिट मुझे हर बार 10 करके 5,000 रिकवर करके दे देता, वो कमा नहीं पाया तो ये भी एडवर्स आइला, ये तो सेम आ रहा है, तो सेम ही आएगा, ऑल्टरनेट मेथड है, ऑल्टरनेट आंसर नहीं। दोनों सॉल्व करने का एग्जाम है सर, एग्जाम में कैसे दोनों करने का, जब तक क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं करता दोनों करके आओ, इट क्रिएट्स अ गुड इंप्रेशन, प्लस आपको ना प्रैक्टिस हो जाएगी तब तक। बिकॉज समटाइम्स दे में आस्क यू फाइंड आउट फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस बेस्ड ऑन आवर्स, तो लग गए रास्ते। इन दैट केस यूनिट वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर पाओगे, आपको यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। यू शुड नो बोथ, यू शुड गिव बोथ अनलेस दे रेस्ट्रिक्ट यू। बात समझ में आई? वेरी क्लियर, आंसर सेम रहेगा, लॉजिकली क्लियर है सब कुछ हो गया। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, ये चार्ट लिख लो, चार्ट। क्वेश्चन प्रैक्टिस आइदर आई विल स्टार्ट टुमारो और वेडनेसडे, कल ही कर दूंगा मैं, कल ही हो जाएगी। और ऋतिक, आपका थियरी हो गया क्या? क्या आप बता सकते हो कितना थियरी हो गया आपका? कल मैं अभी कौन सा चैप्टर चाहिए तुम लोग को, बोलो जल्दी। मेरे ख्याल से अभी प्रॉब्लम क्वेश्चन सॉल्विंग कर सकते हैं, वो एम्प्लॉय कॉस्ट का उसमें हो जाएगा क्वेश्चन में, मार्जिनल भी उसमें हो जाएगा। मार्जिनल का 2-3 अभी रिवाइज करवा देता हूँ फटाफट। नहीं, स्टैंडर्ड का एक प्रॉपर सम है उसमें, जिसमें मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड तीनों है। हाँ, और ऊपर से रिवर्स क्वेश्चन भी है वो। फिर एक प्रोसेस का भी करवाऊंगा जो थोड़ा स्पेशल है। So that is a simple revenue you are generating, no? So that to that extent your cost has to be less. Because that is a scheme. You return, you get something back. So it basically reduces your material cost. You have to be specific, no? देखो, प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो रही है, ठीक है, लॉजिकली यू आर राइट, बट कल को मुझे कॉस्ट कटिंग पे जाना है, तो मेरे लिए कॉस्ट का ब्रेकअप जरूरी है। इनफैक्ट वी नीड ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट, दैट्स व्हाई वी प्रिपेयर कॉस्ट शीट, अदरवाइज मैं तो कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रॉफिट और सेल 3 लाइन में खत्म कर दिया होता। क्या होता है, कभी कभी मटेरियल में इंफीरियर क्वालिटी का ले नहीं सकता, वर्कर का पैसा काट नहीं सकता, रॉयल्टी तो मुझे पे करनी है, तो प्राइम कॉस्ट तक तो मैं हिला ही नहीं सकता कॉस्ट स्ट्रक्चर। हाँ, लेकिन फिर मैं एडमिन कॉस्ट चेंज कर सकता हूँ। जो फर्स्ट क्लास से ट्रैवल करते थे प्लेन में, वो बिजनेस क्लास से करेंगे, जो बिजनेस क्लास में करते थे वो इकोनॉमी से करेंगे, जो इकोनॉमी से करते थे वो ट्रेन से जाएंगे, जो ट्रेन से जाते थे वो बस से जाएंगे, जो बस से आते थे चल के नहीं, जूम पे मीटिंग करेंगे, चल के क्यों जाएंगे?
जूम पे मीटिंग कर लो. I can always bring down the cost structure, but admin, so that my overall cost structure goes down. क्योंकि मैं प्राइम कॉस्ट को हिला नहीं सकता. That is why that cost has to be connected to the real cost. नॉर्मल लॉस में क्यों मटेरियल से माइनस करता हूँ प्रोसेस में से? आइडियली मैं किसी से भी माइनस करूँ तो फाइनल आंसर सेम आएगा. नॉर्मल लॉस अमाउंट मैंने अगर लेबर से भी माइनस कर दी होती, सीपीयू बदलेगा, वैल्यूएशन इंडिविजुअली बदलेगा. अबे लेकिन टोटल तो वही आएगी, टोटल वही आएगी, मार्क्स वही नहीं आएंगे, क्योंकि वो माइनस होनी चाहिए मटेरियल से. इट डजंट ब्रिंग डाउन योर टोटल कॉस्ट, इट ब्रिंग्स डाउन योर मटेरियल कॉस्ट. लेट द मटेरियल कॉस्ट बी शोन इन द बुक्स. एबीसी मार्जिनल और सर्विस. अरे एबीसी हो गया कल, एबीसी हो गया. हाँ जियाद, कल ही चालू कर देंगे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग. सर्विस भी है लाइन में, अभी करवा दूं क्या? नहीं जाने दो सर. अरे जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं उसमें सर्विस भी हो रहा है, मार्जिनल भी हो रहा है, और मार्जिनल के कुछ कंसेप्ट जो उसमें कवर नहीं हो रहे हैं वो मैं डिस्कस कर दूंगा इलस्ट्रेशन बनाकर. जैसे स्टैंडर्ड अभी मैंने किया, जैसे मैंने एबीसी एनालिसिस किया, वैसे वो भी कर दूंगा मैं. तुम लोग डिमांड करते जाओ, मैं सप्लाई करते जाता हूँ. तुम लोग को क्या चाहिए बोल दो, अकॉर्डिंगली विल प्लान द सेशन. अभी तुम लोग को कल मार्जिनल तो हो जाएगा, उसका टेंशन नहीं है. और क्या चाहिए तुम लोगों को? तुम लोग को क्या चाहिए? ब्रेक. जल्लाद आदमी चला जाए ऐसा. हाँ वो भी करवाऊंगा, रेशो भी आएगा. रेशो अभी करवा देता हूँ, चल बेस्ट. केस स्टडी है, तो मैं बाद में करवा देता हूँ, पर एक जनरली इसके लिए मैं पूरा प्रोसीजर दे दूंगा, हाउ टू क्रैक केस स्टडी. एबीसी का भी एक सम. अरे यार इतना टाइम नहीं होगा, मैं वीडियो भेज दूँ एबीसी का, देख लोगे ग्रुप पे. एक बार रेशियोज डिस्कस कर लेते फटाफट. अभी ध्यान से सुनना. दे में आस्क यू रेशियोज अलोंग विद फिक्स्ड ओवरहेड्स. अब रेशियोज आर इंडिकेटर्स ऑफ योर प्रोडक्टिविटी. ध्यान से सुनना, रेशियोज आर इंडिकेटर ऑफ योर प्रोडक्टिविटी. तो यहां पे तो प्रोडक्टिविटी नजर ही नहीं आ रही, तो आपका प्रोडक्टिविटी शुरू होता है यहां से, तो आपके रेशियोज भी शुरू होंगे वहां से. समझा? अब रेशियोज आर इंडिकेटर. अरे सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन. रेशियोज आर इंडिकेटर ऑफ वेरिएंसेस, परफॉर्मेंसेस. तो अगर वेरिएंस एडवर्स है तो रेशियो नेगेटिव होगा. नेगेटिव मतलब लेस देन 100. रेशियो कभी माइनस भी नहीं आता, लेस देन 100. और अगर वेरिएंस फेवरेबल है, वेरिएंस एडवर्स, रेशियो लेस देन 100. वेरिएंस अगर फेवरेबल है तो योर रेशियो शुड बी मोर देन 100. और वेरिएंस है ही नहीं तो 100% रेशियो. अबे वेरिएशन नहीं मतलब. तो मेरा सबसे पहला वेरिएंस जो प्रोडक्टिविटी दिखाता है वो है वॉल्यूम वेरिएंस. तो मेरा सबसे पहला रेशियो भी वॉल्यूम रेशियो आएगा. फिर आएगा कैलेंडर रेशियो. फिर आएगा कैपेसिटी. कैपेसिटी इज ऑल्सो इंडिकेटर. एंड फिर आएगा, अच्छा एफिशिएंसी रेशियो में आई विल हैव टू शो 2 कैलकुलेशंस. वन विल बी बेस्ड ऑन I'll try, Rishita, I'll try. Okay, अब ध्यान से सुनना. Look at your volume ratio. एडवर्स है या फेवरेबल है? एडवर्स है या फेवरेबल है? तो रेशियो शुड बी मोर देन 100, लेस देन 100. नाउ इफ यू वांट योर रेशियो टू बी लेस देन 100, न्यूमरेटर मस्ट बी lesser than the denominator.
If you want ratio to be less than 100, your numerator should be lesser than the denominator. दोनों में से lesser कौन सी है? 9000. मतलब can I say the formula is actual quantity upon budgeted quantity into 100? What? I didn't know what we were discussing. अभी पता चला. You are freezing out, it seems. No, I knew. I was paying attention, but I didn't know that she said ratios. I said, what ratios? हाँ 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 हाँ. अभी now you are clear ना? Yeah, yeah. This is Calendar variance. Adverse, favorable. Good for us, bad for us. Ratio should be more than 100, less than 100. If ratio is more, numerator must be greater. दोनों में से greater amount कौन सा है? हाँ? Good. तो 27 upon 25 we'll have to do. Same ना रे. Actual days upon budgeted days into 100. मुझे आंसर से मतलब नहीं, मुझे सिर्फ फॉर्मूला का डेरिवेशन समझाना है. आंसर तो निकाल ही लोगे. दोनों एक्चुअल अपॉन बजटेड ही है. एक एडवर्स था, एक फेवरेबल था. डिस्पाइट ऑफ दैट बोथ आर एक्चुअल अपॉन बजट. तुमको सिर्फ थॉट प्रोसेस पे ध्यान देना है, ये अपने आप एडजस्ट हो जाएगा. देख लो और एक बार. खापाकीड़ी. एडवर्स और फेवरेबल. एडवर्स. मोर देन 100, लेस देन 100 रेशियो. तो न्यूमरेटर मस्ट बी लेसर. तो लेसर अमाउंट कौन सी है? यार ये भी तो एक्चुअल है. सो इट इज एक्चुअल आवर्स अपॉन स्टैंडर्ड आवर्स इनटू 100. स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल डेज. मिला? एफिशिएंसी. एडवर्स मतलब अच्छा हुआ बुरा हुआ. तो रेशियो शुड बी लेस देन 100, मोर देन 100. न्यूमरेटर मस्ट बी छोटू. छोटू कौन सा है? ओ माय गॉड. सो इट इज स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन एक्चुअल आवर्स इनटू 100. और एफिशिएंसी रेशियो आवर्स के बेसिस पे हमेशा यही आता है, लेकिन क्वांटिटी के बेसिस पे क्या आता है? ये याद है आपको? दोनों रेशियो अलग होते हैं. एफिशिएंसी बेस्ड ऑन आउटपुट is actual upon standard and efficiency based on hours is standard upon actual. प्रूव कर देता हूं मैं. ये तो कर दिया भाई. अब ये देखो, एडवर्स या फेवरेबल? एडवर्स या फेवरेबल? तो रेशियो शुड बी लेसर देन द डिनोमिनेटर. द न्यूमरेटर मस्ट बी लेसर देन द डिनोमिनेटर. क्या है? 9000 है. तो 9000 क्या है? 9000 क्या है? दिस इज हाउ योर रेशियोज आर डिराइव्ड. बाकी के कुछ रेशियोज है वो कल डिस्कस करते हैं. अब रेशियोज का चैप्टर तो मैं सिखाऊंगा नहीं, क्योंकि वो एफएम है. ज़्यादा उम्मीद नहीं रखने का. पर ये बेसिक वो इसका भी स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी मैंने उड़ा दिया, क्योंकि वो मटेरियल का हिस्सा है, तो मटेरियल कॉस्टिंग में आ सकता है. रेशियो समझ में आए? चलिए ठीक है.